There is no voice here. Kanika, we might need to replay it because there's no voice. I think she was facing some problem. A very good afternoon to friends. We welcome all of you to our business opportunity with Chai webinar series. This is a digital representation of the business opportunity which we have got for you. Today, we have invited the brand team to digitally interact with you to talk about their business proposal they're offering in market and what kind of a value proposition they're trying to create with all of you. This is a 45-minute session which is divided in two parts. First, we'll take you through the correct and the complete understanding of the business proposal with the help of the PPT. Then we'll move towards a panel discussion. We welcome our brand. Today, we have invited Mr. Akshay, Mr. Akash, and Amit from Teachy. And we have also invited Mr. Prashant Bhandari, who's a CEO at McKinsey India. He'll be taking all your queries. So we request all of you to share your queries as well as suggestion in question and answer box. The business opportunity is Teachy. It's a golden opportunity for all of you who wants to start your edutech distribution business. You can start this particular business with just an investment of 50,000 rupees. So thank you so much for registering and joining this particular webinar. Now I will invite Akash, Amit, and Akshay to talk about their brand. Thank you so much, three of you, for joining in today. Over to you. Thank you, Archana. And first of all, I would like to thank all the participants who have taken their time out and joined this webinar. Before we start, I would quickly introduce myself and Teachy, and then we'll proceed with the business plan. So I am Akash Kasondhan, and I lead the business of Teachy in India. So Teachy is a Singapore-based company, and at present it is operational in 4 countries. India was the first country where the product got launched, and it is also available in South Korea, China, and Singapore. And Teachy is a B2B SaaS platform. So nowadays you would be hearing a lot about edtech companies in general in the media, and edtech has been on the rise for the last decade. And now is the good time when a lot of institutes and a lot of individual teachers as well as students have opened up to the idea. So now is a great time to get into an edtech business. And I'll show you what Teachy offers and what kind of business model we provide to all our partners. So I started my first edtech company in 2007, 14 years back, and it got incubated at IIT BHU. I was a student there. And since then, I have been associated with edtech in some form of or another. I have started 2 of my own companies, and currently I'm with Teachy. And I have seen a lot of progressions in edtech, how the space has evolved, what is the possible future for this, and this is something that we'll be discussing throughout the session. So, so first of all, why Teachy? Why like all of you are looking for business opportunities, and I would like to answer why Teachy very quickly. So first of all, like in any business, there is an initial investment that is involved, but with Teachy, that investment is very, very low. So to start this business, you don't have to invest a lot of money. You can start at a very nominal cost, and the product is the category leading product.
when I show you in detail what features we have, what we all offer, then you'll agree with me that it is the category leading product. And there is a detailed training and support system that all our partners get, and that helps you get successful in the business. And then the margins are very high. So despite of very low investment, the margin percentages are very, very high, probably among the highest in the industry. So first, let's talk about some other benefits that are there when you partner with Teachee. So before we talk about benefits specific to Teachee, let's talk about why EdTech. I mean, if you decide to associate with Teachee, then you are basically getting into a business in EdTech space. So you need to understand that EdTech is the fastest growing industry at this stage. So in the last 2 years, EdTech has grown by more than 200%. So most of the EdTech companies, the leading ones and the smaller ones, have grown 3 to 5 times in size in terms of their revenues, in terms of market valuation. They have grown 3 to 5 times. Overall, the industry has tripled in size in the last 2 years itself. And it has grown many folds in the last 1 decade. And most of the growth or most of the media coverage that you would have seen is in the B2C space. And that is why I previously said that it's a great time to be in EdTech business, because B2B, which is still in a nascent stage, will definitely grow significantly over the next 5 to 10 years period. So several industry estimates are there that present that over the next 5 years, there will be at least 40%, 45% growth in B2B segment. And why I'm saying so? So you must have heard about the company called Amazon. So Amazon is now among the most valued companies globally, and it became a $100 billion company in 2012. So 9 years ago, it became a $100 billion company. So what Amazon did was, Amazon is a B2C company. So as a customer, you can shop over there. It's a customer brand now. But what Amazon did was, Amazon basically trained sellers to sell online, and it also brought some level of comfort among the customers to shop online. So the customers got familiar with online shopping and sellers got familiar with online selling. So this is what Amazon did. And what was preceded by that was, over the last 8-9 years, you would have seen rise of a lot of D2C brands. I mean, on Amazon, people started off as sellers and then they became their own brand. And there are several $100 billion companies globally that are brands in itself. In India also, you would have seen recently that there are so many companies that are well funded. They are doing good business, like Mamaearth and so many brands that originally started from Amazon and then they ventured out as a big brand in themselves. And what powered these brands were a lot of B2B companies. So Shopify is a market leader in that category. And 8 years after Amazon became a $100 billion company, Shopify became a $100 billion company. Now it's almost $200 billion company. So it hit the 100 billion mark in 20. Several billion-dollar companies now. And most of these companies became billion-dollar companies over the last 2 years. So it's quite possible that in the coming few days, B2B will be powering a lot of small businesses, what Teachee is doing. So we are basically powering a lot of individual teachers as well as smaller coaching institutes. And despite being in a nascent stage right now, we are slated for a huge growth. And why, I mean, again, why Amazon, what Amazon and Shopify did, the similar phenomena is happening in EdTech also. So Amazon में Amazon ने जैसे कि sellers को और buyers को train किया था, वैसे ही EdTech companies में teachers को और students को train कर दिया है. पिछले 1.5 साल में pandemic की वजह से सारे students online classes लेने के लिए force हुए हैं. उन्होंने online classes लेना शुरू किया और online classes से वो comfortable हो गए हैं. अब आप किसी भी पेरेंट्स से बात करो, they are actually, a lot of them are actually more comfortable with online education. अभी बहुत सारे schools और coachings खुल गए हैं, but अभी भी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हम online में ज्यादा comfortable हैं. बहुत सारे advantages हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, ट्रैवल टाइम बचता है, कॉस्ट कम होती है, प्लस अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाती हैं चीजें. ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और सेम पेस पे मुझे पढ़ना है. सो पेरेंट्स स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो गए हैं. उससे बड़ी बात है कि टीचर्स कंफर्टेबल हो गए हैं. जितने बड़े B2C प्लेटफॉर्म्स है वहां पे टीचर्स पढ़ाते अब उनको समझ में आ गया कि ऑनलाइन पढ़ाने के क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या सही अप्रोच होती है, और अब वो लोग B2C प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं. और पिछले 1 साल में अगर आपने मीडिया फॉलो किया हो तो
B2B एडटेक स्पेस में कई सारी कंपनीज वेल फंडेड हुए हैं, कई सारी कंपनीज जिन्होंने अच्छे रेवेन्यूज जनरेट किए, अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है, और टीची इन सबसे बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे। सो जैसा मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से ये एब्सोल्युटली बेस्ट प्रोडक्ट है, और उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज आपको बेनिफिट मिलता है फॉर बाय बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ टीची इज कि आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है। टीची की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आपको असाइन होता है जो आपको हर स्टेप पे हैंड होल्ड करता है, आपको ट्रेन करता है, आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप खुद कर रहे हो। आपको पूरा एक सपोर्ट इकोसिस्टम मिलता है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फिर आपके स्टाफ की आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है जिससे आपका टीची बिजनेस तो ग्रो करे, साथ ही साथ आपकी एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, आपको नई चीजें सीखने को मिले। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एडटेक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री से अगर आप एब्रेस्ट रहते हो तो आपको डेफिनेटली अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। फिर टीची आपके स्पेसिफिक एरिया में, आपके स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस में अलग अलग मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, सेमिनार्स करती है, वेबिनार्स करती है, फिजिकल इवेंट्स करती है, जिससे कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिले। और टीची एक स्टार्टअप है, पर ये एक एमएनसी का पार्ट है, जिसकी वजह से आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि ठीक है, एक आप एस्टैब्लिश्ड एमएनसी के साथ काम कर रहे हो, आपको जो बेस्ट वर्क प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वो आपको मिलती हैं। दूसरा, आपको एक स्टार्टअप का जो पेस है, जितनी तेजी से हमारा प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है, जितने इनोवेशंस होते हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं। तो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, किस तरह के पार्टनरशिप्स हैं हमारे पास? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। फर्स्ट इज द गोल्ड पार्टनरशिप, सेकंड इज द सिल्वर, एंड थर्ड वन इज द एफिलिएट। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या हमारा रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग पार्टनरशिप्स लेवल पे, और क्या आपको रिटर्न मिलता है। सो अगर आप गोल्ड पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 लोगों की सेल्स टीम लगानी होगी और 2 लोगों की सपोर्ट टीम लगानी होगी। सपोर्ट टीम क्यों? क्योंकि गोल्ड पार्टनर हमारे सेल्स प्लस सर्विसेज दोनों पार्ट हैंडल करते हैं। हम लोग जो B2B प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेसिकली हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने में, लाइव क्लासेस लेने में, टेस्ट कंडक्ट कराने में, इस तरह की जो उनकी रेगुलर ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो प्रोडक्ट तो अपनी जगह है, बट उसमें बहुत सारा सर्विसेज का एलिमेंट भी होता है, जो बाय डिफॉल्ट तो कंपनी खुद करती है, बट हम अपने गोल्ड पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी वो चीज कर सकते हैं और उसमें एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप गोल्ड पार्टनर बनना चाहते हो तो आपके पास दोनों चीजों का सेटअप होना चाहिए, सेल्स एज वेल एज सपोर्ट। सेकेंड चीज क्या है कि टीची के पास अपना एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस पे बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज सेल होती हैं। अगर आपका अपना खुद का कोई कोर बिजनेस है, लाइक अगर आप स्मार्ट बोर्ड्स में डील करते हैं, डिजिटल क्लासरूम हार्डवेयर में डील करते हैं, आप कंटेंट सर्विसेज में डील करते हैं, तो आप जो कस्टमर्स आप एक्वायर करेंगे उनको तो आप कर ही सकते हैं, प्लस टीची के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं बाय लिस्टिंग ऑन आवर मार्केट प्लेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको टेक्निकल सपोर्ट किसी भी चीज में नहीं देना होगा। अगर किसी को प्रोडक्ट में कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो हमेशा टीची की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसमें आपको नहीं जाना है। जो मैंने इनिशियली बोला कि अगर आप गोल्ड पार्टनर है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपको कस्टमर को समझाना है, सिखाना है, उनको विजन दिखाना है कि कैसे वो अपना बिजनेस टीची प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ये टीची के पास अपनी कस्टमर सक्सेस टीम में वो करती है, बट अगर आप गोल्ड पार्टनर है तो आप कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, जैसा नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, कस्टमर ट्रेनिंग एंड रिन्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोल्ड पार्टनर के केस में वो पार्टनर के पास रहेगी, सिल्वर और एफिलिएट के केस में वो टीची करेगा। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि रजिस्ट्रेशन फी है, वो गोल्ड पार्टनर के लिए 50,000 है, सिल्वर पार्टनर के लिए 25,000 है, एफिलिएट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। जो मार्जिन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जो आप फ्रेश सेल करते हैं, जब आप एक नया कस्टमर एक्वायर करते हैं, तो एज अ गोल्ड पार्टनर आपको 30% मार्जिन मिलता है, सिल्वर में भी आपको 30% मिलता है, बट एफिलिएट में आपको 10% मिलता है। जो रिन्यूअल्स होते हैं, रिन्यूअल्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप गोल्ड पार्टनर हैं तो रिन्यूअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कस्टमर से रिन्यूअल के लिए फॉलो अप, उससे पेमेंट कराना वो आप कराएंगे, और उसके लिए आपको 30% मार्जिन मिलेगा, सेम एज जो आपको फ्रेश
सेल पे मिलता है। सिल्वर पार्टनर के केस में वो काम टीची करेगा, बट उसमें भी आपको 10% मार्जिन मिलता है। एफिलिएट में ऐसा कोई मार्जिन नहीं मिलता है। फिर टीची में अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स जो पहली बार प्लेटफॉर्म ले रहे होते हैं वो यूजुअली बेस या मिड प्लान से शुरू करते हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ देयर जर्नी जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको उसके फायदे समझ में आते हैं, तो वो प्लान अपग्रेड करते हैं। प्लस कुछ एड ऑन्स होते हैं, वो एड ऑन्स परचेज करते हैं। तो उनपे भी अगर आप हमारे गोल्ड पार्टनर है तो आपको 30% मार्जिन ही मिलता है। अगर आप सिल्वर है तो आपको 5% मिलता है। एफिलिएट के केस में कोई मार्जिन नहीं है। इन सब के अलावा बहुत सारे टारगेट लिंक्ड एडिशनल इंसेंटिव्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर होते हैं, और वो काफी हेल्दी होते हैं। So as a gold partner, including target linked incentives, you can earn up to 50%. 40-45% is doable for almost 90% of our partners. And if you are performing exceptionally well, then you can earn 50%. So ये income potential है अलग अलग partnership models में, अलग अलग categories में. So moving on, ये एक projected financial summary है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर आपका क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है और क्या एक्सपेक्टेड आपकी उसमें एक्सपेंसेस होंगे, क्या इनकम होगी। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, और मैंने यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लिए हुए हैं, क्योंकि मतलब मैंने एक एवरेज के सिनेरियो लिया हुआ है। अगर आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा अपसाइड रहता है। जैसे मैंने पहले साल में जो एज्यूम किया, दैट इज ओनली 3.2 लाख रुपीज। पहले साल आपका जो रेवेन्यू होगा सिर्फ 3.2 लाख रुपीज होगा, और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, मेजर आपका एक्सपेंस मैन पावर में होगा, बाकी उसके अलावा कुछ माइनर एक्सपेंसेस और होंगे, जैसे थोड़ा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा, आपका कम्युनिकेशन का एक्सपेंस होगा, बट मेजर आपका जो है मैन पावर एक्सपेंस ही रहता है। सो पहले साल में आप जो आपका आफ्टर एक्सपेंसेस मार्जिन आएगा, 3.2 लाख के आपका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप 50,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मार्जिन अर्न करते हैं। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट को नहीं इंक्लूड किया है, बिकॉज इनिशियल जो 50,000 इन्वेस्टमेंट है आपका वो वन टाइम है। अगर मैं रनिंग एक्सपेंस की बात करूं तो उसमें आपका कुछ भी नहीं, मतलब मैन पावर के अलावा कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होगा। तो अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ लेता हूं, तो जो आपका अपना ब्रेक इवन, ऑपरेशनल ब्रेक इवन होने का जो टाइम है, दैट इज 12 मंथ्स। 12 महीने में आपकी जेब से जो पैसा लगा है वो आपको रिकवर हो चुका होगा, और उसके बाद जो भी एडिशनल आ रहा होगा वो आपके लिए एडिशनल इनकम होगी। सेकेंड ईयर में अगर आप नंबर देखेंगे, और सेकेंड ईयर में क्यों ये सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि पहली चीज आप अपना मार्केट, अपना टेरिटरी समझ चुके होंगे, आपका बिजनेस वैल्यू बढ़ चुका होगा, प्लस आपको रिन्यूअल इनकम आने लगी होगी। पहले साल आपने जो कस्टमर्स बनाए हैं उनमें से मेजोरिटी लोग रिन्यू कराएंगे, ज्यादा बड़े प्लान पे रिन्यू कराएंगे, उसकी इनकम तो आपको होगी ही होगी। उसके बाद जो नए कस्टमर्स आप एक्वायर कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो सेकंड ईयर में आप देख सकते हैं जो आपका मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर रहा है। फर्स्ट ईयर में आपका 99% का आरओआई निकल के आ रहा है, लेकिन सेकंड ईयर में ये 1800% पहुंच जाता है। और ये 1800% क्यों है? क्योंकि अनलाइक प्रोडक्ट कंपनीज, यहाँ पे आपका कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपने जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी पे की, उसके बाद आपका कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जैसे जैसे सेल करते हैं वैसे वैसे आपका मार्जिन बनता जाता है। आपका सिर्फ जो एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस, वो मैन पावर का है, और उसको अगर आप ऑप्टिमली यूज करते हो आपका एक्सपेंस नेग्लिजिबल है। तो ये हमारा 3 ईयर का प्रोजेक्शन है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप देखेंगे तो इसमें और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। थर्ड ईयर में आप इजीली 50 लाख रुपीस के आसपास रेवेन्यू कर सकते हैं, और वहां पे आप 30 लाख रुपीस तक का इनकम कर सकते हैं, बिकॉज आपका 40-45%, 50% तक का आपका रनिंग प्रॉफिट होता है, प्लस आपका जो रिन्यूअल इनकम होता है वो एडिशनल है। 50 लाख के रेवेन्यू पे आप 30 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट कर सकते हैं थर्ड ईयर ऑनवर्ड। अब जैसा मैंने पहले 2-3 बार ये रिपीट किया कि टीची अपने कैटेगरी का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो प्लान तो हमने देख लिया समरी में। अब मैं चाहूंगा कि आप ये देखें कि कैसे टीची अपने कस्टमर्स को हेल्प करता है, बिकॉज फाइनली आप एज अ पार्टनर काम करेंगे। आप टीची को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट समझना, प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ को समझना बहुत जरूरी है। तो टीची एजुकेटर्स के लिए प्रोडक्ट है, और वो उन्हें ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, अपना लर्नर बेस एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा वर्टिकल है जिसमें टीची के कंपैरिजन में कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है। आप अगर मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 50 ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको लाइव क्लास सॉल्यूशन देते हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेल करने में हेल्प करते हैं, आपको ऐप बनाने में हेल्प करते हैं, वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें टीची करता ही है। लेकिन इसके अलावा जो हमने अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से लर्न किया, और जो हमने मल्टीपल टीचर से बात करके लर्न किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लर्नर्स एक्वायर कैसे करें।
अगर आप मार्केट में जो टॉप B2C कंपनीज है, आप बायजूस, अनअकैडमी, इन सबको देखेंगे तो प्रोडक्ट इंडिया में हजारों ऐसे टीचर्स हैं जो उनसे बेटर बना सकते हैं, उनसे बेटर वीडियोस बना सकते हैं, उनसे बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स कैसे एक्वायर करें, क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चा इन B2C प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के आपके पास रजिस्टर करे, इतने इंटेंस कंपटीशन में आपके पास रजिस्टर करे। तो उसके लिए जितने टूल्स चाहिए होते हैं वो सारे टूल्स टीची प्रोवाइड करता है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसका हैंड होल्ड प्रोवाइड करता है। और ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो टीची अपने कस्टमर्स जो कि एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करता है, जो इंडस्ट्री में आपको और कहीं नहीं मिलता है। तो टीची आपको ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है वाया वेबसाइट, वाया मोबाइल एप्स। फिर आपको अपने लर्नर्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। फिर जो आपकी ऑपरेशनल चीजें हैं, जैसे फीस मैनेजमेंट हो गया, पेमेंट कलेक्ट करना हो गया, स्टूडेंट्स के और आपके टीचर्स के राइट्स मैनेज करना हो गया, उसमें आपकी हेल्प करता है। फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि कोर है। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, असेसमेंट्स, क्विजेज, ये सारी चीजें कराने में हेल्प करता है। और ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी के साथ करने को देता है, बिकॉज एक टीचर जिसने अपना पूरा टाइम मेहनत लगा के एक कंटेंट बनाया है, उसके लिए कंटेंट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंटेंट सिक्योरिटी के साथ डिलीवर हो। मार्केट में बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स या बहुत चीप प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, आप पढ़ाई करा सकते हो, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है। तो एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है कि आपका कंटेंट सिक्योर फॉर्म में जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जा रहा है। टीची के जो कोर ऑफरिंग्स हैं वो है, एक तो आपको बहुत अच्छा ऑनलाइन इंटरफेस मिलता है, बहुत जल्दी ये सेटअप हो जाता है। आप साइन अप करते हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करते हैं, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सेटअप हो जाता है। फिर आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, बट एक जो बेसिक टू गेट यू स्टार्टेड जो वो सेटअप होता है वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। फिर आपको अब मैं जो भी बोल रहा हूँ एजुकेटर्स के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि जो एजुकेटर है, जो कस्टमर आप एक्वायर करेंगे, उसको एक अकाउंट मैनेजर मिलता है जो उसको हर स्टेप पे हेल्प करता है, उसके इनिशियल सेटअप से लेके उसकी ट्रेनिंग, फिर वो प्रोडक्ट यूज कैसे करे, क्या मॉड्यूल पहले इस्तेमाल करे, क्या बाद में करे, या उसके स्टेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि हर कस्टमर का जो बिजनेस का स्टेज होता है अलग होता है। कोई कस्टमर है जिसने जस्ट आज पहली बार एक ऑनलाइन सेटअप शुरू किया है, कोई कस्टमर होता है जो 2 साल से पढ़ा रहा है, पर उसको अब एक्सपैंड करना है, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, उसको 5 करोड़ पे पहुंचना है। तो सब लोगों के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग होता है, प्रोडक्ट तो कॉमन है, लेकिन अकाउंट मैनेजर उसके यूज केस के हिसाब से उसको ट्रेन करता है, उसको हैंड होल्ड करता है और उसे ड्राइव करता है। फिर ये सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है और ये एक SaaS प्रोडक्ट है। SaaS प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है कि ये एक क्लाउड पे सेटअप है। ऐसा नहीं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, वही चलता रहेगा। ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है, रेगुलरली नए फीचर्स आते रहते हैं, इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये हर कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए iOS और एंड्रॉइड ऐप भी होती है जो कि व्हाइट लेबल्ड होती है, जो कि टीचर या इंस्टीट्यूट अपने ब्रांड से बना सकता है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो आपको प्रोवाइड होता है। आपके जो लाइव क्लासेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है कि आप अगर चाहते हैं कि जो लाइव क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ड्रिप टाइमिंग है। नाउ ड्रिप टाइमिंग इज अगेन अ वेरी यूनिक फीचर दैट टीची ऑफर्स। ड्रिप टाइमिंग इज बेसिकली कि आप अपने कोर्स को गेमिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट चैप्टर 1 पढ़ने के बाद चैप्टर 5 पे जंप ना करे, वो चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 1 का क्विज क्लियर करे, उसके बाद चैप्टर 2 पे जाए, तो आप ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 1 पढ़ने में स्टूडेंट मिनिमम 5 दिन लगाए और छठे दिन ही वो चैप्टर 2 पे जाए, तो वो सब सेटिंग्स करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने जिस स्ट्रक्चर में कोर्स को बनाया है उस स्ट्रक्चर में ही उसका कंजम्पशन हो पाए। उस चीज के लिए ड्रिप टाइमिंग की फैसिलिटी टीची आपको ऑफर करता है, और ये टीची के अलावा बहुत कम ही प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करते हैं। फिर यहाँ पे क्विजेज और टेस्ट्स मिलते हैं, पूरा ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन होता है, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि K-12 और कुछ कैटेगरीज में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलते। बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, पर यहाँ पे आपको पूरी वैरायटी मिलती है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ट्रू फॉल्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं कि अलग अलग टाइप के टेस्ट आप इजीली करा पाएं। फिर जैसा मैंने पहले कहा कि टीची आपको अपने ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपको लर्नर्स एक्वायर करने में हेल्प करता है, और इसके लिए ये सारे फीचर्स हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको प्रोमो कोड्स और एफिलिएट मार्केटिंग मिलती है। एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप कुछ भी मार्केटिंग कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम करता है वो वर्ड ऑफ माउथ करता है। आप किसी भी
सक्सेसफुल स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, कोचिंग का एग्जांपल ले लीजिए, इवन ऑनलाइन प्लेयर्स का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे वर्ड ऑफ माउथ काफी इफेक्टिव होता है। और कई बार जो एक टीचर के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, वही 4 लोगों को बताते हैं कि अच्छा मैंने इस टीचर से पढ़ाई की थी और मुझे फायदा हुआ, तो उससे 4 स्टूडेंट्स और एडमिशन लेते हैं। उस चीज को और एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग टूल बनाया हुआ है, जहाँ पे एक एजुकेटर अपने स्टूडेंट्स को प्लस किसी भी पर्सन को अपने एफिलिएट की तरह रजिस्टर कर सकता है, और एफिलिएट के पास उस टीचर के कोर्सेज के कस्टम लिंक्स बन के आ जाते हैं। जैसे ही उस लिंक से कोई परचेज होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम ट्रैक कर लेता है ये इस एफिलिएट ने सेल किया था, और एफिलिएट का मार्जिन अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ये प्रैक्टिस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में काफी पॉपुलर है। अगर आप कोटा में या दिल्ली में या कानपुर में जहाँ पे कोचिंग हब्स हैं वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे कोचिंग ओनर्स होते हैं जो अलग अलग सिटीज में, अपने नियर बाय सिटीज में जहाँ उनका टारगेट ऑडियंस होता है, वहां पे एफिलिएट्स बना के रखते हैं जो उनको स्टूडेंट सोर्स करके देते हैं और उसमें वो उनको मार्जिन देते हैं। ये सेम चीज ऑनलाइन में भी होती है, आप अनअकैडमी में देखेंगे तो वहां पे भी सेम चीज होती है। और ये चीज एक छोटा टीचर नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतना टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करने का पावर नहीं होता, क्योंकि ये सब सिस्टम्स बनाना एक्सपेंसिव होता है जहाँ पे हर एक यूनिक लिंक बन जाए, सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग कर ले। बट हमारे प्रोडक्ट में ये चीज इनबिल्ट है और ये हर प्लान के अक्रॉस बिल्ट इन है कि आप किसी को भी एफिलिएट बना के उससे अपने कोर्सेज सेल करा सकते हैं, उसका मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस उसमें प्रोमो कोड्स है, जैसे अभी दिवाली गई तो आप दिवाली पे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को 20% डिस्काउंट देना, या अभी न्यू ईयर आएगा उस पर आप चाहते हैं कुछ डिस्काउंट मिल जाए, या कोई स्टूडेंट पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया है, आप चाहते हैं फर्स्ट कोर्स परचेज पे उसको 500 रुपीज ऑफ देना। इस तरह का कुछ भी करना चाहते हैं तो प्रोमो कोड से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है एक्विजिशन टेस्ट, या आप इसे स्कॉलरशिप टेस्ट कह सकते हैं। ऑफलाइन वर्ल्ड में काफी फेमस है बट ऑनलाइन प्लेयर्स में ये चीजें इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन एजुकेशन में हर टीचर चाहता है कि उसके पास एक फिल्टर्ड स्टूडेंट्स आए, और उसके साथ ही साथ ये एज अ मार्केटिंग एक्टिविटी काम करता है। जब आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं जहाँ पे आप अनाउंस करते हैं कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और जो भी टॉप 10 में आएगा उसको एक फोन मिलेगा या एक साइकिल मिलेगी या कुछ भी एक गिफ्ट मिलेगा, ऐसी चीजें अनाउंस करके बहुत इजीली स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। और हमारे सिस्टम में ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप ऐसे टेस्ट इजीली कंडक्ट करा पाए जिससे आपको ज्यादा स्टूडेंट्स मिले, उसमें जो आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपने मेन कोर्सेज में एडमिशन दे पाए, प्लस आप एक फिल्टरिंग प्रोसेस रन कर पाए कि अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे पास इस सर्टेन कैलिबर के ऊपर के स्टूडेंट्स आए वही आ पाए। फिर आप इसमें ओपन कोर्स कर सकते हैं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा वेदांतु। सो वेदांतु में क्या होता है कि वो लाइव क्लासेस बेस्ड कोर्सेज चलाते हैं, और यूजुअली मॉडल ये होता है कि आप वेदांतु पे जाते हैं, हर एक कोर्स के 2 या 3 फ्री क्लासेस या एटलीस्ट एक फ्री क्लास लिस्टेड होता है, आप उस पर रजिस्टर करते हैं, फ्री क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कोर्स लेना है या नहीं लेना है। ये सेम चीज वेदांतु जैसा इंटरफेस, वेदांतु जैसे फीचर्स के साथ आप एक एक जो छोटा टीचर है, एक जो छोटा इंस्टीट्यूट है वो लॉन्च कर सकता है ओपन कोर्स मॉड्यूल यूज करके। उससे वो फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करा सकता है, जैसे अभी हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं जूम के ऊपर, इस तरह से वो अपनी वेबिनार कंडक्ट करा सकता है ओपन कोर्स मॉड्यूल यूज करके। ओपन कोर्स मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आपके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, चैट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स जो आपको एक फ्री कोर्स में चाहिए होते हैं वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। और इसको सेटअप करना, इसको रन करना बहुत ईजी होता है। आप इसको वेबसाइट पे इजीली शोकेस कर सकते हैं, फीचर्ड सेक्शन में दिख जाता है, और उससे स्टूडेंट्स के एनरोल करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। अगला फीचर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है लैंडिंग पेजेस। आप अगर कहीं पे भी मार्केटिंग एक्टिविटी रन करते हैं, सपोज आप फेसबुक पे अपना एड रन कर रहे हैं या आप गूगल पे कीवर्ड्स पे बिड कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली वहां से लैंड कराते हैं तो वेबसाइट पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। वेबसाइट पे आपके टीम के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में, आपके शेड्यूल के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपने ऐड बहुत स्पेसिफिक चीज का रन किया, लेट्स से आपका ऐड बोलता है कि दिवाली पे इस कोर्स में 20% ऑफ है, सिर्फ इतना ऐड है। अब अगर वो वेबसाइट पे लैंड करता है, वहां पे उसको 50 कोर्सेज और मिलते हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो आप यहाँ पे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके एड से यहाँ पे विजिट किया है, उसमें से कितने लोगों ने कन्वर्ट किया है, कितने लोग वहां से ड्रॉप ऑफ हो गए, वो सारा स्टैटिस्टिक्स आपको मिलता है। प्लस वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड पेज होता है, जहाँ पे आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं क्या ऑफर है, कैसे उसको परचेज करना है, कैसे अवेल करना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लैंडिंग पेज किसी भी सक्सेसफुल B2C कंपनी या किसी भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनी के लिए एक नॉन डिस्पेंसेबल पार्ट होता है, और ये चीज हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं कि आप कुछ भी डिजिटल मार्केट कर रहे हैं आप इजीली वहां से ट्रैकिंग कर पाए। नेक्स्ट चीज जो हम देते हैं ब्लॉग देते हैं कि ब्लॉग्स के थ्रू आप अपने
इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने बारे में और चीजें बता सकते हैं और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म मिलता है जो आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, बटन के फॉर्म के फॉर्म में, जिससे कि आपको इंक्वायरीज मिले और आप उनसे बात करके उनको अपने कोर्सेज में एनरोल करा पाए। फिर इसके बाद मैं थोड़े एडवांस फीचर्स की तरफ जाता हूँ, तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस मिलते हैं। देखिए हमारे प्रोडक्ट में आपको ऑलमोस्ट हर चीज जो एक एजुकेटर को रिक्वायर्ड होती है वो मिलती है, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको शायद उसके बियॉन्ड भी करने की जरूरत पड़े। आप शायद सोचें कि अच्छा मुझे एक एडवांस ईमेल ड्रिप मार्केटिंग कैंपेन रन करना है, वो चीजें भी आप टीची के ऊपर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम आपको वेबहुक का इंटीग्रेशन देते हैं। वेबहुक यूज करके आप दुनिया की जितनी भी सक्सेसफुल या पॉपुलर थर्ड पार्टी एप्स हैं, स्पेशली मार्केटिंग फील्ड में, उन सबको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली। कुछ क्लिक्स करके आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको मैनुअल डेटा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर कराते हैं, फिर आपको ईमेल भेजना है, आप उसका एक्सेल में डंप लेते हैं, फिर कहीं और अपलोड करते हैं, फिर वहां से एक एक करके ईमेल भेजते हैं। यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है, आप वेबहुक यूज करके अपने पसंद की किसी भी ईमेल मार्केटिंग ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहां से ऑटोमेटिकली होगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे एड्स रन करते हैं तो आप फेसबुक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या ज्योग्राफी है जहाँ से आप को लोग विजिट करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग विजिट करते हैं, किस ब्राउजर से, किस डिवाइस से विजिट करते हैं, ये इंटीग्रेशन हमारे। तो ये सारी चीजें अगर आप एज अ बुके देखेंगे, इतने फीचर्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है, और इन फीचर्स की हेल्प से आप बहुत सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को एक्वायर कर सकते हैं, लर्नर्स को बता सकते हैं कि आपकी क्या ऑफरिंग है और वो आपके पास आ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो ऑटोमेटेड है, पेमेंट गेटवे इनबिल्ट है, आपको सिर्फ अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है, आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाता है। आप रियल टाइम अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितने कोर्सेज में क्या पेमेंट आया है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेमेंट अटेम्प्ट किया बट वो ड्रॉप कर गए, क्योंकि कई बार ऑनलाइन परचेज में क्या होता है, आप जाते हैं परचेज करना शुरू करते हैं, फिर आपका या तो बैंक का प्रॉब्लम होता है या आप सोचते हैं चलो ठीक है आज नहीं परचेज करेंगे कल परचेज करेंगे, आप ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन ये यूजर्स, इसको ई कॉमर्स टर्म्स में अबैंडन कार्ट बोलते हैं, तो अबैंडन कार्ट वाले जो यूजर्स होते हैं वो आपके हाईली पोटेंशियल यूजर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्स को देखा और परचेज करने की कोशिश की। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अलग से रिपोर्ट्स में मिलती है, जिससे आप उनको इजीली कॉल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अमेजोन पे कभी शॉपिंग की हो, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप कोई चीज अपने कार्ट में ऐड करके छोड़ देते हैं तो आपको 2-4 दिन बाद एक मेल आ जाता है, मल्टीपल मेल्स आते रहते हैं, या अगर आपका कभी पेमेंट फेल हो जाता है तो भी मल्टीपल मेल्स आते रहते हैं कि आप रीट्राई कर लीजिए, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये सेम चीजें जो अमेजोन लेवल की फंक्शनैलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो कहाँ पे पेमेंट उसका ड्रॉप हुआ, कौन सा कोर्स वो खरीद रहा था, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको मिलता है और आप उसको अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे मल्टीपल हैं। आपका जो भी कंटेंट होता है वो वाटरमार्क हो जाता है, वाटरमार्क भी डायनेमिकली आप सेट कर सकते हैं। डायनेमिक का मेरा मतलब है कि आप उसमें जो स्टूडेंट है उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी शो करा सकते हैं। तो उससे वैसे तो इसमें कंटेंट को डाउनलोड करना, पायरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर कोई कर भी पाता है सक्सेसफुली, अगर किसी तरह से कर पाता है, तो वहां पे उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी शो कर रहा होगा, तो वो उसको कहीं पे भेज नहीं पाएगा, और अगर भेजेगा तो इजीली पकड़ा जाएगा। तो इस लेवल की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है। प्लस आप यहाँ पे डिवाइस का लिमिटेशन लगा सकते हैं कि एक बार में एक ही डिवाइस पे लॉगिन हो पाए, मल्टीपल डिवाइसेस पे ना हो पाए। आप कोर्सेज को ऐप ओनली कर सकते हैं कि वेब पे ना देख पाए, सिर्फ ऐप पे देख पाए। ऐप के ऊपर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिसेबल्ड होती है, स्क्रीनशॉट डिसेबल्ड होता है, तो किसी तरह से वो कोर्स को कॉपी नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे डीआरएम प्रोटेक्शन रहता है, आप जो भी पीडीएफ फाइल्स डालते हैं या जो भी आप वीडियोस डालते हैं, पूरा एक प्रोटेक्शन के साथ लॉन्च होता है, तो किसी भी तरह से इसमें पायरेसी करना इजी नहीं होता किसी के लिए। और एजुकेटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सारे फीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रोडक्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्विक ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा कि 3 सेगमेंट्स हैं कि क्लास से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, क्लास में आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर क्लास क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती है। सिक्योरिटी में क्या मिलता है, डेटा के लिए क्या मिलता है, इंटीग्रेशन कौन से मिलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सिंगल स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मूविंग ऑन, देयर आर सम टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स, कि हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमारे पास अक्रॉस industries customers हैं, because we are a SaaS platform, we are not focusing on any specific industry. The best part about the product is ये प्रोडक्ट एक K-12 कोचिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और एक हॉबी क्लासेस, सपोज आप कुकिंग क्लासेस रन कर रहे हैं, आप योगा क्लासेस रन कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। प्रोडक्ट को इस तरह से मॉड्यूलर तरीके से बनाया गया है कि हर इंडस्ट्री का कस्टमर इसको इजीली यूज कर सकता है और उसके लिए ये हेल्प कर सकता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
3 कस्टमर्स का मैंने टेस्टिमोनियल प्रेजेंट भी किया। ये अलग अलग इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं और एज अ पार्टनर आपका भी एडवांटेज होता है कि आपको एक वाइडर ऑडियंस को डील करने में हेल्प मिलती है। कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं जो सिर्फ K-12 के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट जो हर इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। और ये हमारे प्रोडक्ट के प्लान्स हैं। बेसिकली हमारे 4 प्लान्स हैं, बेसिक, प्रोफेशनल, प्रीमियम और एंटरप्राइज। और अगर मैं एनुअल प्राइसिंग की बात करूं तो ये 9,000 रुपीज से स्टार्ट होके 66,000 रुपीज तक जाता है। और हर प्लान में अलग अलग लिमिटेशंस हैं, लाइक नंबर ऑफ लर्नर्स, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। अगर आप टॉप प्लान्स में जाएंगे तो आपको अनलिमिटेड मिलेगा। कोर्सेज, बैचेस, टेस्ट, ये सब में अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितने एसेंशियल फीचर्स हैं जैसे मार्केटिंग के सारे बेसिक फीचर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सारे प्लान्स के अक्रॉस अवेलेबल है। तो अगर किसी को जस्ट स्टार्ट करना है तो वो 9,000 रुपीज के प्लान से इजीली स्टार्ट कर सकता है और जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे वो अपना प्लान अपग्रेड कर सकता है। ये मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था कि आपको अपग्रेड और अपसेल पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज अभी हमारा जो सबसे पॉपुलर प्लान है वो प्रोफेशनल प्लान है। जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कस्टमर्स प्रोफेशनल प्लान से शुरू करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 30% कस्टमर्स उसमें ऐसे होते हैं जो विद इन 3 मंथ्स अपना प्लान अपग्रेड करके प्रीमियम या एंटरप्राइज पे जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। इवन दो प्राइस ज्यादा दिख रहा है, बट जब कोई कस्टमर साल का 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमाने लगता है तो उसके लिए ये प्राइस मैटर नहीं करता, उसको बेस्ट ऑफ द क्लास फीचर्स चाहिए होते हैं। और इसके अलावा कुछ एड ऑन्स होते हैं, जो एड ऑन्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है, और वो भी मतलब एडिशनल पे करके कभी भी कस्टमर ऑप्ट कर सकता है। ये हमारे कुछ मीडिया कवरेज आर्टिकल्स हैं, लाइक कभी रिसेंटली हमें बिजनेस स्टैंडर्ड, वीक, प्रिंट, आउटलुक, इन सब ने कवर किया था व्हेन वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट। सो बेसिकली टीची को हमने बीटा लॉन्च लास्ट ईयर अक्टूबर में किया था, और अक्टूबर से लेके अगस्त तक हम मार्केट टेस्ट कर रहे थे, बहुत अलग अलग चीजें हम रन कर रहे थे। फिर अगस्त में हमने फाइनली इसको कमर्शियल लॉन्च किया, व्हेन वी वर कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है, कस्टमर्स का फीडबैक अच्छा है और सारी चीजें सक्सेसफुली रन हो रही हैं। और फिर अभी हमने रिसेंटली फ्रेंचाइज इंडिया से पार्टनरशिप किया, जिससे कि हम इसे अब अगले लेवल पे स्केल कर पाए वाया अ पार्टनरशिप मॉडल। And like I told you, it is part of a Singapore-based company. The parent company name is VLight Technology. And as of now, globally, we have 150 plus people. In India, we have 30 plus people. And we have more than 40,000 customers in India as of now. So a lot of these are free customers. So we have 2,000 plus paid customers as of now. And we are growing almost at 60-70% per month in terms of new customer acquisitions. So that is all from my end, and we can take up questions now. And Thank you so much, Akash. Now I will invite Mr. Prashant to take all the queries. Akash, just give me 1 minute. I think he is facing some problem. Just give me 1 minute. Hi, Prashant, we can see you now. I think you were facing some problem. Okay. So we invite you for question and answers. Thank you, Archana, and thank you, Akashi, for elaborating and giving us the entire model in terms of what we do and TG and how do we proceed. There were a few questions that I have in terms of, if you, for example, which are the key cities, or I would say key areas that you're looking at in terms of for partners, and do you have you done some kind of a survey, or I would say some kind of a dipstick where you see these are the markets where, these are low hanging fruits, these are the markets you can really go and look for the partners. Am I audible? Akashi, am I audible? Yes, Prashant, we can hear you very clearly. All right.
So I think Kash is not anybody. Amit, Akshay, you want to reply to his query? Yes, actually, we are looking for tier 1 cities. Yeah, Akash is there, I think. Okay. Akash, Prashant ji is asking something. Okay, hi Akash. I wanted to thank you and for telling our investors in terms of the business model that you have, and also the presentation and the way you articulated the entire presentation was nice. I think it kind of made sense to at least for us in terms of what you want to do in the market. Having said that, I think there are a couple of questions that I have, and from the investor side is, what are the key areas that you're looking at, launching this model in India? Do you have those, areas where it's low-hanging fruits, where you can actually, or you've done some kind of a dipstick survey, or you've done some kind of analysis that these are the areas that, you can just kind of go and appoint partners there? So, like this platform or the target audience is actually geography agnostic. But yeah, it's easier to get paid customers in metros and tier 1 cities. And the reason is like the customers in these geographies have higher exposure level to online teaching methods, and even the students have higher access to personal devices and mobile internet connectivity. So that is why it's easier to get customers over there. But yeah, it is agnostic. So we have a lot of customers in tier 3 cities, even in smaller towns as well, and it's working out. But yeah, if I would say that if you have to prioritize, I would say tier 1 and metro cities are better to start with. This is agnostic in terms of we can go anywhere in India. So that's the answer that I got from you, and that's my understanding. Also, I would like to ask or to check what kind of partners, you when you go to the market, or you're looking at, or you're actually expecting those kind of, because it's a new model, it's a new business model, and it's a new business. So what kind of partners are you looking at? Are there any characteristics, or is there any feedback that you have for investors that these are the partners that we are looking at? They should be coming from an educational background, or XYZ. So is there any characteristics or you have, or in your mind, what kind of partners are you looking at? So we would say that the partners who are already into the business of serving coaching institutes. So the major categories are like providing printed books or any type of educational material, or content services, or smart solutions, smart class solutions like smart boards, computer hardware, mics and all. So if you are already dealing in such business, then you should definitely start working with Teachee, because you already have a engaged customer base with you, and who can easily go for Teachee product. But even if you don't have any prior experience with dealing with coaching institutes, but you are passionate about EdTech, and you believe that EdTech is going to grow over the next few years, then you should definitely start working with us. So Akash, there was one question that was there in the Q&A box, but I think that question is not there. If you can just not elaborate, but in short, what is the business model? How do one, from an investor point of view, how does one look at this business model, and what is the business model in while we have understood, but there was one question that came in. I thought maybe you would like to answer in short. Yes, so the business model is pretty straightforward. I mean, there is no requirement of having any location or any huge capital investment or something of that sort. You need to be passionate and a believer of this kind of product, because this is the future. Already we are seeing that happen, and you need to commit your time to this purpose. I mean, this is a vast product. It has so many modules, so many features. So you need to understand what exactly it is. You need to dedicate a couple of weeks to understand the product, understand how it benefits the customer, talk to a few customers, participate in some demos. And if you are willing to make that investment, then you can easily get successful in this. So the business model is simple. There is a nominal registration fee that you pay up, and then you have to undergo a training program that will take a week's time, and it can extend up to 2 weeks if like you don't have any prior understanding of education segment.
So after 2 weeks, you start meeting the prospective customers. If you don't have any prospective customers, then we have some engagement activities planned by which you can get access to those prospective customers. The company will give you full support in conducting those activities. And then you have to like follow up and nurture those leads and get the closures done. And when the closure happens, then you raise your invoice, you get paid. So that is how the entire flow works. All right. So one question while you've answered, I thought maybe it will be beneficial for other investors. Preeti Agarwal ji is asked. She's asked which type of courses you provide at school level or competition level or both. So while Amit ji has answered, I thought maybe the investors can also hear it. So basically, we do not provide any courses as such. We are a platform provider, and any type of institute, whether it is a school or a coaching institute or even an individual teacher, they can create their own courses on the platform. So sometimes we feel that courses is very heavy word. I mean, like courses, only large companies provide courses. But let's say, even if you are a very small school or a small teacher, you can simply set up your live streaming on our platform, and you can start taking live classes. And you can start selling those live classes. We have many customers who don't have any prior experience and they don't even have any content. And what they simply do is they create their website, they set up their live, they start taking some free classes, and then they start selling courses priced at 499, 999 rupees. And then they gradually introduce long-term courses. So any educator can start in that manner. Even in schools, like a lot of schools have opened up now, but most of them are operating at less than 50% capacity. So still they have to take live classes. And it's not easy to collect payment for those live classes. If you talk to any school owner, especially the smaller or mid-sized schools, they are not getting proper fee collections over the last 1.5 years. And the reason is because they are taking their classes on WhatsApp or on Google Meet and all those platforms. So there is no way to charge money for that. So if you can simply put up a paywall, which a lot of smart B2C players do, before you get to take the live classes, you have to pay that fee, and only then you can take that, which is possible on Teachee. So that becomes an online course in itself, right? So that course setup is possible on Teachee. We don't provide any courses on our own. So any teacher, any educator, any institute can set up their own courses. Sure. And one question which has come from Sonia, she's asking, where can I know more about Teachee? So I think that's where you need to connect with Franchisee India, and then we'll be more than happy to kind of help you or with you. So would you like to answer it? So basically, you can check out Teachee's website, teachee.com, and then we would be more than happy to talk to you in person and explain in detail or any specific queries if you have. So what should be the minimum ROI? While you have kind of explained and you have kind of told, what is the minimum ROI that one can expect in the first year of business with you? Yeah. So excluding the initial investment that is there, the registration fee, because that is a one time. So that's why in my calculations also I didn't include that. So on a conservative side, minimum 100% ROI can be expected by any partner that associates with us. What is the what is the marketing support, or what is the support that you give it to your partners? Because these are the partners who will be coming into your platform and trying to upsell and bring the business. So what kind of marketing support or other support that you provide? I think that's one question that you can answer. So there are a lot of coaching associations or school associations that are there at city level, state level, and even national level. And so far, this has worked pretty well for us. All these coaching associations have their respective events, both online as well as offline. And we usually become a sponsor in those events, and we ask one of our partners to participate there, collect the leads, contact all the attendees, and then this becomes very effective. So this is one way by which we get our partners boost up their business. So this is an offline event. But apart from that, there are multiple other activities that we can do. So far, this is one example which has worked successfully for us. Apart from that, we can run certain offline outdoor marketing campaigns.
in most cities, there are coaching hubs where you will find a concentration of potential customers. So you can put up small holdings or outdoor marketing material over there and conduct field visits. So we provide support in that. And apart from marketing, so usually what happens is in the initial days, till you get 5 to 10 closures, the product can be a little overwhelming. So till that time, Teachee's representative will be participating in all the meetings with you, wherever possible in an offline manner, otherwise in an online manner. So they'll support you in all the meetings. They'll take the demo, they'll handhold you throughout the demos. And once you become confident about the product, once you become trained about the product, then you can start pitching on your own. So this is the biggest support that we provide, and this is very much needed in such kind of product and such kind of industry. Right, thank you, Akash, for answering the questions. Archana, I'm handing over to you. Thank you so much. I think Kashish Sharma has raised the hand, and they should take a question from them also. Who's So raising? Kashish, we can't, Kashish, you have to write your query in question and answer box, then only we'll be able to take the query. We won't be able to allow you to speak, but you can share your query in question and answer box. There is a box created for you guys. Okay, so Kashish, we request if you have any query, you have to write in question and answer box, then only we'll be able to take it. So thank you so much, Akash. Thank you, Amit. Thanks, Akshay, for joining in today. If you have any last query, last submission for our investors, one by one, you can. I just want to add one more thing, right? Actually, we cater two type of industry, like academic and non-academic. And if we'll talk about academic and non-academic, it become a huge industry. Like if we'll talk about the customer to whom we are catering right now, we have a customer from astrology also. We are a customer from coding also. We have a customer from fitness also. And we have customer from financial management also. So like anyone who wants to sell their intangible product or online product, right? So they can come to Teachee. So it become a huge market for our channel partner also. Sure, Amit. So Amit, we got one query from Shailendra Gupta. He's asking us, if we join you, what will be our role? Like it will be a role of educator or an investor? So it will be the role of a channel partner. You will be our channel partner, right? You will not be having a role of educator. It will be a channel partner role. Yeah. So basically, in terms that you have asked, basically you'll be an investor. So you start your business with Teachee. So Partner, that would be the role. And in case you are a teacher yourself or you have an institute yourself, I would encourage that you take the first subscription for yourself, so that you can use the product as well as you can like understand and help your target customers to understand the product better. Sure. So thank you so much, Amit. Thanks, Akshay. Thanks, Akash. Thank you so much, Prashant, for joining in today. All the dear friends, you need more information about this particular business opportunity or any other opportunity, please do reach out to us at our business hotline number, which is 97176-83838. We also request you to share your suggestion and feedback with us. Also, you can easily connect with management team of Franchise India, Gaurav Sir and Sonema Madda and LinkedIn platform. Link we have just shared on a screen. And tomorrow under our 12 p.m. national webinar, we are inviting you to join us for Cafe di Quanta. That's the brand we are bringing you tomorrow. It's the first ever introduced brand in market, in Indian market, which is providing cafe in a rooftop container. So that's a new concept, and they're providing two models. One can be started with 20-foot container and second can be started with 40-foot container. So please do registration, which is free of cost. Registration can be done either at our business hotline number or go to Facebook page where we have shared the registration link. Look forward to have you in tomorrow's webinar. Thank you so much once again. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Thanks, everyone.
Thanks.